cost of not doing something. Say if you want to do an MBA, it means you are not doing your job, which means how much money are you losing. Other way around, suppose you want to continue your job, which means you're not doing an MBA. And for MBA, you can calculate how much money you put and how much money you can make after the campus placements, and do a proper number comparison. But beyond that, I would love to hear what other scenarios where people use these words quite often and is helpful for better decision making. Sure. Yeah, Aman, what do you think? So you are also planning to do MBA? Yes, sir. 2 years. Do you think there is opportunity loss? नो सर, मैंने इस अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं देखता इस चीज को, बिकॉज मेरा जो है ग्रेजुएशन से बीए से है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, कोई प्रेस्टिजियस कॉलेज से नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जॉब जो मिलेगी मुझे वो इस टाइप की जॉब मिले जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकूं, ठीक है, लाइक जितना ही मुझे मिलेगा 20-25,000 30,000 से ज्यादा तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं है, जहां से मैं बीए एज ए इकोनॉमिक्स पर्सन और जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए आई थिंक एमबीए जो है जब मैं अच्छी कॉलेज से करता हूँ तो मुझे आगे सैलरी उसकी दिखती है, मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें नहीं दिखती, जिसमें अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट इसमें ज्यादा नजर आ जाता है एज कंपेरेबल टू दिस। और जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं उस टाइप की मेरी फीस वगैरह भी नहीं है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस यू कैन गिव 10 लाख 20 लाख, दिस टाइप की फीस नहीं है मेरी। अभी गिव पर ईयर ऑन नॉमिनल फी ऑफ 1500 to 10,000 to 1500 or 2000 रुपीज नॉर्मली। एंड अगर एमबीए करने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ती है थोड़ी, लोग आपको जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, आप एक सिर्फ कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड के नहीं आते, और जब आपको ये पता है कि आपको कंपनीज में क्या करना है या फिर किसी अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो, आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर दिस एमबीए इज बेटर, लाइक मी स्टूडेंट्स। Okay, Atul sir, what's your take in this? My view, whatever we do has a cost, and whatever we don't do also has a cost. So life is all about making choices with our time. Just many people are attending this group discussion at 10 p.m. IST call. Now, if we attend this call, we might learn something, and if we don't attend this call, we might miss out something. But many people might have many others. So let's say there is another important family emergency they have, or any family thing, or even somebody wants to read something, watch something. So the same 1.5 hours has many other uses. So each person has to evaluate how I'm going to spend my next 1.5 hours, and that 1.5 hours can have many other uses. So those uses are the opportunity cost. And time, say, as people say, it's a cliche, time is money. I mean, time lost never comes back. So MBA cases में, or even higher education cases में, money is one of the costs, but the biggest cost is that 1 year or 2 year which you are giving to that education. In that 2 years, you could have started a business, become rich and famous, or in that 2 years you could have done some other courses. You could have done a master's in science, or done some other courses. So I think it's a choices people have to make. And that will include between the risk and reward. What are the risks? What are the rewards you are expecting out of those 2 years, whatever you do? And so the returns have to be justified compared to the cost you are paying. And the cost is not in terms of money, but also in terms of time and other lost opportunities. Okay. Anyone else want to add comment on this, please? Hello. Yes, please. Yeah, I totally agree with Atul sir. Whatever he has said, like opportunity cost is analyzed based on the rewards. I feel if you are investing something, doing MBA for 2 years, and post MBA, if you get a job, well-paid job that you wouldn't have been competent enough to get before doing this MBA, then definitely it is I will say it's a good deal, I feel. But on the other end, it shouldn't be like everyone is doing, that's why I am also doing. And at the end of the day, end of the session, we are not in a position to justify
our time, what we have invested. So I feel it is the same thing. Opportunity cost is same. Ki, if you are justifying whatever investment you have done, if you are getting returns on that, then definitely it is a good deal, I'll say. Mm-hmm. Yeah, Yes. so that is fine. So now the opportunity cost can really be defined after the harm is done, right? Or the good is done. Yeah, So at the exactly. end only Once you you will get the know reward, kya hua. once you get the reward, after that only we can analyze what Yeah, is the cost. what is इसके the पीछे cost? हमने कितना, हाँ, इतने इसके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, Yeah. that we can only understand after we execute it, I'll say. So no, one difference opinion, Hariji. I mean, I agree with the other point you said, but these for any expensive decision. So whether you want to buy something, a car or a phone, or even an education, 2-year MBA. So people spend a lot of time in evaluating the possible cost as well as return. So anybody who's doing an MBA, all these why are these rankings? Which is the top MBA in India or top MBA in world? All the education. The rankings are basically to reduce those information asymmetry, where people before doing an MBA or before doing an MS or whatever program, you would like to know how much return you are getting out of it. And I remember from IIM Ahmedabad. So before an IIM Ahmedabad, when I was doing my first startup or doing my bachelor's, I was making 800 rupees a money. 800 rupees, something like that I was making. And then after my job, even my internship, I got decent money. And after my job, I got maybe around 6.5 lakh or something. In 2001, that was a bit decent salary. And that return, that what is the salary people are expected to get after that MBA, that is a very important factor. And I'll give another example from US universities and college. So if anybody does an MBA or higher education from Harvard University, one of the most expensive, they will end up paying around $400,000, like $500,000. Now, most people at Harvard or US University, they don't get placed in within the next like 3 days, like the way we do it in India. Here, people are given time. It's not because they're not jobs; they are jobs, but students want to take the time to make a decision. So people are given 3 months, 6 months. The whole placement process is a long process because the people who are there, most of them are experienced people from a different, very good background. So they like to take the time to evaluate the companies. So they will meet McKinsey and they will meet the investment banks. So whatever they want to do, they get to know each other. And there are a lot of informational interviews between the current employees of the company and the these MBA students. And then they make a decision. So I think different models, but the main thing is about knowing the costs and knowing the return. These are the two things. What are the expected outcome, ROI, and expected investment in that decision? Yeah, so Atul sir raised one good point. तो इंडिया में IIMs का बात करेगा. So MBA is like अभी current rate is like 20 से 25 लाख, 20-25 lakhs. Whereas like Harvard and Stanford and things like that, it's at least 1 to 2 CR, like 1 to 2 crore, something like that, plus 1 year or 2 year of time. And let's say somebody from India goes to let's say Harvard, MIT, Stanford, and spends this 1 crore, 2 crore taking education on putting some collateral. Then that person probably cannot return to India right away if it's an education loan. Because why I say this is because now the person has to return that education loan. So he went there pretty much with a hope that he'll land up with a job, and that job will probably pay him decent amount so that he can take care of the education loan plus a bit more, which he can use for his own survival also. ठीक है, जो वो इंडिया आने के बाद वैसा हो नहीं पाएगा क्योंकि उस लेवल की सैलरी मिलेगी नहीं, एंड द लोन clearing that loan will become very hard, actually, almost impossible, although some rich people may pay it from their pocket directly, but ये बहुत ज़्यादा होता है. Educational loan becomes a trap for going for abroad studies for a lot of people, and then they're stuck like, I mean, they have to really clear the loan. By the time they clear the loan, they get used to the lifestyle and things like that,
फिर वो वापस आना इज बिकम लाइक अ फेरी टेल स्टोरी. तो यहाँ पे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वे मोर देन जस्ट दैट 2 year or 1 year MBA वाला cost, because there is education loan and things like that. So it's like if you really see it as a trap, what's happening is पहले आपको लोन दे दिया गया, फिर आपने पढ़ाई किया, फिर आपने लोन चुकाया, फिर जब तक वो लोन खत्म हुआ फिर कुछ और लोन आ जाएगा, आपका हाउसिंग लोन आ जाएगा, ये लोन आ जाएगा, फिर ये चलता रहेगा. सो वट एवर मनी इज कमिंग टू यू, it's pretty much there are like 10 giants or 10 banks which are ready to give you loan so that they can take the money from you in the form of EMI. So I think एक चीज और होता है, opportunity cost सोचते समय people may not think that far. People will just think कि हाँ 1 साल 2 साल लगाया मैंने, ये सैलरी मिला, and this is like that. Okay. थोड़ा सा और let's take opinion from other people. Ravi, what do you think, Ravi? Are you there? Or Abhishek, what do you think? Abhishek, are you there? हेलो. हाँ बताओ. एमबीए को लेकर बतलाएं या एजुकेशन लोन को? नहीं, एजुकेशन लोन. हाँ, I mean opportunity cost. I'm just giving examples. It's just one example. एग्जैक्टली. फर्स्ट हम एमबीए को लेकर बताना चाहेंगे कि अगर मेरे पास ऑप्शन रहा कि बीटेक के बाद क्या करना है, तो मेरा पर्सनल चॉइस है कि पैसा आते रहा तो हम एलएलबी करना चाहेंगे, लॉ का पढ़ाई, क्योंकि हमको लगता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना लॉ है हर किसी को जानना चाहिए, भले वो जाकर एक कोर्ट में प्रैक्टिस ना करे, पर जानना जरूरी है. और एक चीज और है, खास करके जो गांव साइड रहते हैं, मतलब सुन भी लेता है जब इसके पास वकील का डिग्री है, तो थोड़ा वो डर के रहता है सब कि हाँ भाई ये जानता है, फंसा सकता है. तो लॉ मतलब थोड़ा बहुत हर किसी को जानना चाहिए. ये मेरा पर्सनल चॉइस. और एजुकेशन लोन को लेकर बोल रहे हैं, मतलब हमको लगता है कि स्टूडेंट को सुसाइड करने का भी सबसे बड़ा रीजन यही होता है, एजुकेशन लोन. जैसे हम अपने कॉलेज का एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब मोर देन 85% स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 79,000 इस सेमेस्टर फी है. और जॉब कितना का हो रहा है, 1-2% को हटा दिया जाए तो 18,000 पर, तो 16,000, 20,000. भाई जो आदमी 20,000 कमाएगा बेंगलोर और कोलकाता में, वो अपना 6 लाख 7 लाख का एजुकेशन लोन कैसे चुकाएगा? तो इसके ऊपर मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि अदर फील्ड का तो मेरे को नहीं पता, पर इंजीनियरिंग फील्ड में हर साल इतना इंजीनियर पास हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, सैलरी बहुत ही ज्यादा कम है. तो अदर ऑप्शन भी लोगों को लेकर रखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी 16-17 हजार का मान लीजिए प्लेसमेंट होता है, ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 17,000 हुआ है तो 77,000 77,000 हो जाएगा. 1-2 हजार इंक्रीमेंट हो सकता है, तो वो कैसे चुकाएगा? और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई होता है, 10-11%. जैसे हम एक खुद लिया हुआ है 4 लाख रुपए का लोन, तो मतलब हमको लग गया, मेरा भी मान के चलिए 15-16 हजार का या 20,000 का जॉब होता, हम कहाँ से चुकाते? नहीं चुका पाते, या तो फिर अपना पेरेंट्स का पॉकेट से भरना पड़ता. तो खेत में जो जिसके पास है, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन सुसाइड करो. उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है. एक्सट्रीम हो गया, बट है ये रियली नहीं, डिप्रेशन तो नहीं है, होता है एक्सट्रीम है, पर होता है, सबसे ज्यादा होता है. हाँ नहीं ठीक है, आई एग्री. आई मीन बट सारे लोग नहीं करेंगे ना सुसाइड कुछ लोग करेंगे. लाइक 100 लोग का ऐसा हुआ तो 2-4 लोग शायद कर लेंगे, या 5 लेंगे, 5-10 ऐसे ही कुछ होगा. 90 100 का 100 तो नहीं करेंगे ना. ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से बात करते हैं. नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ एजुकेशन लोन इट्स अ बिजनेस लोन. सो somebody took a business loan, बिजनेस के लोन ले लिया सोच के कि assumption पे या whatever कि कुछ they'll make some money, and then they are stuck, or I mean either they can pay or they cannot pay, right? I mean famous case हम लोग ले सकते हैं
किंगफिशर एयरलाइन एंड ऑल का, कि जो भी हुआ, आई मीन इंटरनल जैसा भी हुआ। हेलो, तो यस अभिषेक बोलो। बिजनेस लोन को लेकर बोलना चाहेंगे, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि बिजनेस लोन आपको अगर है, मतलब थोड़ा बहुत भी आपके पास है तो आप उसी से स्टार्ट कीजिए। मतलब होता नहीं है, बहुत आदमी 10,000 से स्टार्ट करके भी 10 लाख तक पहुंच जाता है। बिजनेस लोन आप उस केस में ले सकते हैं कि जब आपको लगता है कि 5 करोड़ या 5 लाख 10 लाख का, यानी एज्यूम कीजिए कि अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तब आप 5-6 लाख का लोन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया का लोन ले लिए बिजनेस लोन। तो ये सही डिसीजन मेरे ख्याल से नहीं होता है। आपके पास 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया से आप स्टार्ट कीजिए ना। जरूरी थोड़ा ना है कि आप 1 करोड़ लगाइएगा तभी बड़ा बिजनेसमैन बन पाइएगा। ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अभिषेक, थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, इसलिए मैं तुरंत इंटरफेयर करना चाहूंगा कि अपने पैसे से बिजनेस करना जरूरी नहीं है और समझदारी भी नहीं है। बेस्ट बिजनेस ये है कि आप दूसरों के पैसे से करें। बैंक लोन दे रहा है बहुत अच्छा, कोई आपका अमीर दोस्त दे रहा है और अच्छा, कोई आपके रिश्तेदार दे रहे हैं, बहुत पैसे वाले आप हैं तो बहुत अच्छा। तो बिजनेस दूसरों के पैसे से करते हैं ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिस्क नहीं आप पे नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरा बात सुन लीजिए पूरा। हाँ, मेरा कहना है ना कि अपने बिजनेस, अपने पैसे से आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना टैलेंट लगा रहे हैं, अपना खुद का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा रहे हैं। उसी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने 2 साल का टाइम फ्रेम किया कि 2 साल में ट्राई करूंगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो बंद कर दूंगा या कुछ और करूंगा। तो वो 2 साल जो आपने लगाया, नॉर्मली 4-5 साल लगता था पहले, अब थोड़ा कम हो गया है। तो 4-5 साल आपने लगाया अपने बिजनेस आइडिया को ट्राई करने में, टीम जुटाने में, क्लाइंट खोजने में, प्रोडक्ट बनाने में, सर्विस डेवलप करने में, तो टाइम लगता है। तो वो आपने अपना पैसा लगा दिया, आपके पास है, अच्छी बात है। बहुत लोगों के आइडिया होता है, टैलेंट होता है, बट पैसा नहीं होता है। बट आज बहुत सारा पैसा अवेलेबल है। गवर्नमेंट्स भी दुनिया भर की चाहती है कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें। आप चाहे तो स्टार्टअप इंडिया से, इंडिया में चाहिए तो वो भी 2 करोड़ या कुछ लोन देती है। दुनिया की ज्यादातर गवर्नमेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए लोन देती है लोगों को, और लिटरली फ्री का लोन देती है, फ्री का ये देती है। तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं है। और बड़े बड़े जो बिलियनर लोग भी हैं, अरबपति लोग, वो लोग भी दूसरों का पैसा से ही बिजनेस करते हैं। वो गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या पैसा मिलता है, ले लेते हैं बहुत सस्ते रेट पे, और फिर उसके बाद बिजनेस करते हैं। जब बिजनेस चल गया तो वापस करते हैं, नहीं चला तो ठीक है, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिए। तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग को फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ा कम है कि बिजनेस करने के लिए खुद का पैसा लगाना जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि नहीं, बिजनेस करने के लिए आपको अपना टैलेंट, एक्सपर्टीज काफी है। बाकी जो है ना, पैसा, रिसोर्सेज, वो आप जहां से मिले आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। केवल अपना इंटरेस्ट गार्ड कीजिए कि आप पैसा तो ले रहे हैं लेकिन कल को आपका पर्सनल, इसीलिए लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी कंपनी भी है रेनवेजेस, अब लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन LLC है, तो कल को बिजनेस में बैठ भी गया तो मेरी कंपनी बैठेगी। कल को मेरा जो मेरे पास नहीं आएगी पुलिस करने के लिए कि तो अपना घर, जायदाद, जमीन सब कुछ वापस दो। कंपनी बंद हो गई, कंपनी भी एक एंटिटी, इंडिविजुअल के रूप में माना जाता है लीगली, और कंपनी बंद हो गई, कोई बात नहीं, आप अगला कंपनी शुरू कर सकते हो पुराने, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा कि आपने एक कंपनी खोला, बंद हो गया, तो अगले कंपनी के लिए लोन लेना थोड़ा मुश्किल होगा। सर ऐसे सोच के थोड़ी बिजनेस किया जाता है तो सर, नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। नहीं, हर इंसान का अलग अलग सोच प्रोसेस पे आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग। हाँ, मैं प्रोसेस से बात कर रहा हूँ कि हर इंसान का अलग अलग प्रायोरिटीज होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है, वैल्यूज होता है। तो कौन किस लिए बिजनेस कर रहा है वो हम नहीं डिसाइड करते हैं, हम, हर इंसान का अलग होता है। क्या चला, क्या नहीं चला, किसका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, वो हर केस इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। मेरा जो कोई नहीं अतुल सर, मेरा कहना ये है कि जब अपना पैसा लगता है ना तो मतलब उसमें दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा कन्विक्शन भी ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आपके पास अपना पैसा लगा रहे हैं और आप अपने पैसे से करोड़ों अरबों का बिजनेस बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस जो हम लोग बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, बिल गेट्स बनना चाहते हैं, या बहुत लोग बनना चाहते हैं, नारायण मूर्ति बनना चाहते हैं, तो उन सारे आप केसेस को स्टडी कीजिएगा। तो उन ज्यादातर लोगों ने स्टार्टिंग में अपना कुछ लगाया, सीड मनी जो ही बोलिएगा। जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल बार बार देता हूँ कि सुधा मूर्ति के 10,000 रुपया नारायण मूर्ति लगाया, फाउंडर ने कुछ पैसा लगाया,
बाद में जब बिजनेस सक्सीड हो गया तो फिर दुनिया उनके पीछे आने लगी और बाद में उन्होंने फिर आईपीओ कर दिया, पब्लिक मार्केट में चले गए। तो बिजनेस के अलग अलग फेज बाद में लीजिए उस सही है, जब आप उस कैपेबल हो जाते हैं तब लोन लेना एक गलत नहीं है, लेकिन अब स्टार्टिंग में ही क्या बोलते हैं कि दूसरे के कंधा पर बंदूक रख के चलाना इजी होता है, पर अपने कंधा पर रख के जब चलाइएगा ना तब बाद में आप दूसरे के कंधा पर भी रख के चला सकते हैं। नहीं, आप अपने कंधा पे जितना बंदूक चला सकते हैं चलाइए, बट अगर आप तोप चलाना चाहते हैं ना, कि मैं बंदूक नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं लाठी नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा टैंक चलाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा मिसाइल चलाना चाहता हूँ, तो मिसाइल चलाने के लिए शायद आपको कैपिटल लेना पड़ेगा। और वही डिफरेंस है कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 4-5 साल तक सक्सीड करते हैं, बहुत लोग अरबपति बन जाते हैं, बहुत सारे लोग दुकानदार बन के रह गए कि छोटा मोटा बिजनेस है, लाख रुपए इनकम हो जाता है, कुछ लाख। और बहुत सारे लोग बहुत शॉर्ट फ्रेम में, टर्म फ्रेम में अचानक क्या कहते हैं, पीटर थियल का 0 to अचानक वो बिलियनर बन जाते हैं। उनका और हमारा डिफरेंस क्या है कि छपरा का कोई बिजनेसमैन और न्यूयॉर्क का कोई बिजनेसमैन, डिफरेंस क्या है कि न्यूयॉर्क वाले बिजनेसमैन को पता है कि कहाँ से खटाक से वो फंडिंग ले सकता है और मिलियंस का ले सकता है। और जितना आप देखोगे जो हम लोग बात करते हैं कॉलेज वालों की, तो हार्वर्ड वाले जो बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं, हार्वर्ड के बच्चे, तो उनको स्टार्टिंग में उनको पता है कि हमारे तो ये सारे सीनियर ही है, ये बढ़ के वीसी है, ये बढ़ के प्राइवेट इक्विटी है, उनसे इतना मिलियन मिल जाएगा, उतने ये क्लाइंट मिल जाएगा। तो आप किस नेटवर्क में, उस पर डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में है। आप अगर ऐसे सिचुएशन में आपके गाँव में कि आपको पैसा कोई देने वाला नहीं है या आप लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है, पर्सनल, तो आप अपना दुकान स्टार्ट कीजिए, बहुत साल लगेगा, हो सकता है कि अंबानी बन जाइए, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगेन पर्सनल चॉइसेस। Yes, anyone wants to say? Okay, let me give one more example of opportunity cost only. Funding point of view से मैं बताता हूँ, ये जो बात भी हो रहा है इनफैक्ट अभी दिखता है जैसा है मार्केट में, रोजी स्टोरीज तो बहुत सारे हैं फंडिंग के, इसको इतना मिल गया पैसा, उतना मिल गया पैसा, उतना मिल गया पैसा, बट उस स्टोरी में कोई ये नहीं लिखता है कि इतने पैसे उसे he got in, the company got equal to his. इसका बेस्ट एग्जांपल एक सेकंड हम बताना चाहेंगे। आप शायद उस इवेंट में होंगे विशाल सर, जो टाइकॉन का ग्रैंड फिनाले हुआ था इस साल, थे ना? मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि एक 5 मिनट का पीच सुनकर कोई किसी के ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कैसे लगा सकता है। लग रहा था कि पेड़ से पैसा झल रहा है। हाँ भाई ले जाओ वो 25 लाख, ले जाओ 50 लाख। भाई अंबानी भी उस तरह नहीं दे सकता है। तो मैक्सिमम हमको लगता है कि 95% इन्वेस्टर उसी तरह होते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, आप देखे होंगे 85 लाख का डिमांड किए थे, वो क्या नाम है, राघव बेंदीवाल की, पता नहीं नाम ध्यान मेरे, एग्री हो गए। उसके बाद हम उनको मेल कर करके थक गए, आज तक रिप्लाई नहीं आया। तो वैसे ही होता है, कोई किसी के ऊपर इतना आसानी से पैसा नहीं लगाता है। बहुत लोग अपने पॉपुलैरिटी के लिए भी बोल देते हैं कि हाँ पैनल में 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो वो फर्स्ट आदमी बोल रहा है 1 करोड़, तो हम बोल दे रहे हैं 2 करोड़, दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा आदमी है। और बाद में पता चलता है कि उनका एक खुद का अपना ऑफिस तक भी नहीं है। तो ये रियलिटी है। हाँ, तो ये रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इससे। ये जो फंडिंग है, जो लेट्स से टाइकॉन या जहाँ भी बोलते हैं लोग कि हाँ मैं आपको लेट्स से 1 करोड़ दे दूंगा, नाउ जिस दिन उसने बोला और लेट्स से किस्मत अच्छी थी, द पर्सन गॉट द मनी, the duration between these two timestamps is not going to be very short. It's going to be few months, at least 6 months, 8 months, 1 year, depending on case to case, right? So there is a lot of opportunity cost gone in this कि startup करने कोई निकला है, अपना कुछ करना चाह रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे निकला है, और उसको किसी ने बहला फुसला दिया, समथिंग लाइक दैट, कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, मेरे पास ये भेजो, फिर दौड़ाएगा 10 बार। यस सर प्लीज। तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स में जो फंड रेज करते हैं और नहीं कर पाते हैं, एंड वी आर क्वेश्चनिंग कि उनका लेट से 6 महीना 1 साल बर्बाद हो गया और उनको फंड रेज नहीं मिला, या लेट से उनका स्टार्टअप ही नहीं चल पाया, वो फेल हो गए। आई डोंट बिलीव इवन इफ दे अर्नड 0, वी शुड नॉट
calculate opportunity cost by only INR. Opportunity cost का एक measurement is also the knowledge and the experience you gain. मैंने बहुत बार बोला है और मैं repeat कर रहा हूँ. Let's say मेरा startup नहीं चल पाता है या we are not able to achieve the goals, still I'll be hired as in a leadership position in one of the biggest eyewear company of India or world. So opportunity, मैंने 5 साल नहीं कमाया, अगले 50 साल कमा लिया, तो वो तो हॉकी स्टिक वाला कर्व आएगा ना मेरे में. तो आई डोंट बिलीव कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप 2 साल में रिकवर कर लोगे. नहीं, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को 20 साल में रिकवर करो ना. आप 20 साल बाद करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ. आपको 2 साल में ही थोड़ी बनना है. सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पैसे में तोल रहे हैं, समय में तोल रहे हैं, औहदे में तोल रहे हैं या किस में तोल रहे हैं. और टाइमलाइन भी वो बंदा डिसाइड करेगा, द इंडिविजुअल एंड नॉट वी. Completely agree with Saurabh. I completely agree with Saurabh कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिटर्न जो भी है ना, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है और उसके टाइमलाइन भी अलग है. तो कोई आदमी 2 साल में बनना चाहता है, कोई आदमी 20 साल दे सकता है. और बहुत सारे बड़े बड़े जो हिस्टोरिक एग्जांपल्स हम लोग बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन ऑलमोस्ट 20 years 30 years for that. They have failed in 1 startup, 2 startup, 5 startups. और सिलिकॉन वैली का खास बात है जहां मैं हूँ कि यहाँ पे एक और खास बात है क्यों यहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत थ्राइव करता है, क्योंकि यहाँ पे फेलियर को सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे कि पता चला कि सौरभ ने एक चश्मा का दुकान खोला था, चश्मा का बिजनेस नहीं चला, तो सौरभ को दूसरी चश्मा वाली दुकान वाले कहेंगे इस आदमी को तो पता है, इसने ट्राई किया है, देखा है व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, तो सौरभ यू आर प्लीज जॉइन अस. तो फेलियर को सेलिब्रेट किया जाता है सिलिकॉन वैली में, और थोड़ा बहुत आजकल बैंगलोर और बॉम्बे बहुत जगह पे भी हो रहा है. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप फेलियर मत देखिए. आपके स्टार्टअप में फंड नहीं रेज कर पाया, कंपनी नहीं चल पाया, तो वो जो एक्सपीरियंस है, दैट इज योर अर्निंग, दैट्स योर लर्निंग. यस सर. एक और चीज बोलूंगा, विजय शेखर शर्मा जिनको हम लोग सब लोग पेटीएम के फाउंडर के रूप में जानते हैं, उनका ये फिलॉसफी है कि ओनली हायर्स फेल्ड फाउंडर्स. तो वो फाउंडर जो फेल हो गया, उसको पेटीएम में 5 लाख की नौकरी मिल गई, 5 लाख पर मंथ में. सो उसका आ गया, ROI निकल गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका स्टार्टअप फेल हो गया. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. इस तरह बहुत सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब कि फाउंडर्स हैं जो, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, आई वुड लाइक टू हायर अ पर्सन हु हैज हसल्ड हिज एंटायर लाइफ डिस्पाइट द फैक्ट कि ही फेल्ड और सक्सीड. मुझे तो एटीट्यूड चाहिए ना. मैं आज जब बंदे को हायर करता हूँ, आई हैव 100 एम्प्लॉइज और सारी हायरिंग मैं खुद करता हूँ. मतलब अब बहुत कम करने लग गया हूँ. एक टाइम पे था कि सारे के सारे हायरिंग मैं खुद करता था, और मैं एक ही चीज देखता था कि क्या उस बंदे में एटीट्यूड है सरवाइव करने का व्हेन ही इज प्रेशराइज्ड टू द कॉर्नर, और वहां से क्या वो फ्लाइंग कलर्स में आउटपुट दे सकता है. तो एटीट्यूड इज व्हाट मैटर्स एंड नथिंग एल्स. And failure or success of a startup depends on a lot of factors, especially in India. It doesn't mean कि अगर आप fail हो गए तो आप एक बेकार founder हो, या आप successful हो गए तो आप एक बहुत अच्छे founder हो. It depends on a lot of things. I don't want to discuss that, but yeah. एक बस point add करना चाहूँगा. Completely agree with Saurabh. Another way to put that is कि startup should be taken like an experiment. जैसे हम लोग physics और chemistry में experiment करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वी डोंट नो. आफ्टर द एक्सपेरिमेंट पता चला कि हाँ ये केमिकल एक्सपेरिमेंट काम कर गया, नहीं किया. तो आप लोगों ने इनका कहानी सुना होगा, थॉमस एडिसन का कहानी बहुत फेमस है कि उन्होंने हजारों इन्वेंशंस किए बट कोई हिट नहीं हुआ. फाइनली एक उनका हिट हो गया और बाद में वो बहुत सारे मतलब कि वो बहुत बड़े इन्वेंटर माने जाते हैं. तो फेलियर को सेलिब्रेट करने का जो कल्चर है ना, वो उन कंपनीज में, उन कंट्रीज में, उन इकोनॉमीज में या उन कॉलोनीज में जहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पे देखिएगा कि स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर थ्राइव करता है. और जहां जहां फेलियर को फ्राउन किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए अभिषेक जी जहां से हम भी हैं, या तो वहां पे फेलियर को बहुत लुक डाउन किया जाता है. तो वहां पे आप देखिए कोई स्टार्टअप करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि फलाना कुछ स्टार्टअप कर रहे थे, कुछ नहीं चला, फेल हो गया. तो सोसाइटी आप पे वेट कर रही है आपको फेल करने का, और मोहल्ला मजाक उड़ाएगा. लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो मैंने एग्जांपल बार बार देता हूँ, पैलो अल्टो में या सिलिकॉन वैली या इवन बैंगलोर, मुंबई, या बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ज्यू कम्युनिटी में या सरदार फैमिलीज में. वहां पे आपको
फेलियर करने के से नहीं होने के लिए पूरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। फेल करे कोई बात नहीं, दूसरे लोग आपको बोलेंगे चलो आ जाओ मेरे साथ काम करो, मेरे बिजनेस में ज्वाइन करो या दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। तो ये फेलियर को सेलिब्रेट करने का जो कल्चर है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इनकरेज करना चाहिए सो दैट कि पीपल, स्पेशली यंग जनरेशन, इस ग्रुप में बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं, कि नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। ट्राई तो किया तुमने, सीखा तो कुछ कम से कम। करेक्ट, ये बहुत सही बात है कि फेलियर सेलिब्रेशन एंड लाइक not getting criticized and all, and this causes lot of depression in lot of youth. They failed and they are not given respect at their home. Maybe parents are encouraging, but except that everyone else is against them. नहीं विशाल, पेरेंट्स भी, बहुत सारे पेरेंट्स भी बहुत डिस्करेज करते हैं अगर बंदा फेल हो जाए और खराब नंबर लाए तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग। तो इनफैक्ट इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स। बच्चे में तो यार कोई है ही नहीं ना, माँ बाप ही तो है। ये सही बात है, पेरेंट्स भी हैं, बट एग्जैक्टली ये 100% एग्री करते हैं। स्टार्टिंग तो पेरेंट्स से ही होता है। पेरेंट्स यूजुअली दोनों में से एक, और जगह का तो नहीं पता, पर हम लोग साइड जिधर रहते हैं लोग, बिहार में इधर तो मतलब 99.9% होता है। अरे 100.01% क्यों छोड़ रहे हो अभिषेक? 100%। सबसे बड़ा अमरीश पुरी पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स में भी थोड़ा और स्पेसिफिक बोलो, मम्मी या पापा? अमरीश पुरी बोल रहे हैं। और क्या निरूपा राय अपने बेटी या बेटा को करने देंगे स्टार्टअप? बिल्कुल नहीं करने देंगे। मम्मी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है पापा से ज्यादा। मम्मी पापा तो बोलेंगे कि हाँ बेटा तो है थोड़ा मेरा स्मार्ट है और बाहर जाके क्रिकेट में छक्का मार के ही आता है, मैच जिता के आता है। मम्मी को सबसे ज्यादा डर लगता है अपने बेटा बेटी के प्रति। और मम्मी जानवर में भी देखोगे, जो लायनेस जो होती है वो सबसे ज्यादा बहुत डेडली अटैक करती है। अगर लायन के किसी लायनेस के बच्चे को, अपने कब को किसी शिकारी ने कोशिश किया तो उसकी जान खैर नहीं। लायन उतना नहीं अटैक करता जितना लायनेस करती है। और दूसरों का एग्जांपल देना कि वो देखो कि आर्मी निकाल लिया था, गवर्नमेंट जब में एक कर रहा है और एक दिमाग खराब होता है। मतलब भाई वो क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है? एग्जांपल दे दे के माथा पकाते रहते हैं आज भी। इनफैक्ट सुने तो अभिषेक, आपके लिए बहुत सिंपल आंसर है कि आप अपने पापा को या मम्मी को ये बता सकते हैं कि पापा मम्मी, ये जो लड़का दिख रहे हैं ना, वो मेरे साथ जो था, पढ़ाई में भी अच्छा था, वो एग्जाम में क्लियर किया था, IIT गया या NIT गया, जहां भी गया, अब वो मेरी कंपनी में अप्लाई किया है जॉब के लिए, हम उसको नौकरी दे रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, आप तब पता नहीं कि क्यों नहीं समझ रहे। बिहार में आप कितना भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन आप एक गवर्नमेंट जॉब में चपरासी का भी करते हैं ना, तो आपसे ज्यादा पावरफुल चपरासी है। मानता है लो, मतलब हम एग्री करते हैं, आपसे एग्री करते हैं, बिल्कुल ये है बिहार की खासियत है। आई थिंक बिहार के अलावा भी है एक दो स्टेट और, ये बिहार से सटा हुआ रहता है। यूपी में है और साथ में आंध्र प्रदेश में भी यही है। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा एक हैं बता रहे हैं, सौरभ सर के 63 स्टोर है, पर उनके लिए बिहार में क्या बोलेगा? अरे इतना पढ़ लिख के क्या करता है? चश्मे तो बेचता है, मेरे को भी बल्ब बेचता है। मतलब एक होता नहीं है, बहुत गंदा लगता है, पर इंसान क्या करेगा? फेलियर को सेलिब्रेट करेगा। अभी तो हुआ बात। ये फेलियर नहीं ना है। अब 63 स्टोर खोलना वो फेलियर तो ना है, लेकिन अब कोई आके क्या करता है, इनका लड़का पढ़ लिख के चश्मा बेच रहा है। यस मिस्टर हरी, बताइए। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, ये जो अभी आ रही है क्लियर? हाँ अभी ठीक है, हाँ, तो ये जो चीज होता है, जो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करके ये तो चश्मा बेच रहा है, या इंजीनियरिंग करके तो लोन दे रहा है। Am I audible? Yes. हाँ, तो ये चीज को जब तक कन्वर्ट नहीं होता है ना, वो कि जब तक कि वो यू प्रूव योरसेल्फ एंड उनके लिए नहीं, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है कि यू हैव टू शो देम हाउ यू आर सक्सेसफुल।
तो मैं अगर बोलूं एग्जांपल अगर ले नारायण मूर्ति जी का, सो इवन ही स्टार्टेड विद अ बीपीओ, राइट। तो अपने घर के अंदर उन्होंने बीपीओ से स्टार्ट किया था। सो मोस्ट प्रोबेबली उनको भी किसी ने कुछ बोला ही होगा उस वक्त भी, राइट। नहीं तो ये दिस इज बेसिकली अपने खुद के नजर में हाँ कौन समझना चाहिए, बाकी लोग Yes. क्या समझते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ता हाँ। है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो ढकेल देता है पीछे, नहीं? नहीं वो So you have to दिलासा learn. देने के लिए You have to बोलता है, learn ये not to. You have to learn not to get affected by what people say, either your parents or your close ones or दुनिया। मैं अपनी अगर एग्जांपल बोलूं तो I have not got too much support from my dear ones, but ठीक है, उनका थिंकिंग है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड है, कंजर्वेटिव लोग हैं, उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और दुनिया भी आपके पैर खींचते रहेंगे। इंडिया में क्रैब मेंटालिटी है, तो क्रैब का आई डोंट नो इफ एवरीवन नोज व्हाट इज क्रैब मेंटालिटी। अगर आप सारे क्रैब्स को एक बकेट में डाल देंगे, एक बाल्टी में डाल देंगे, तो एक क्रैब जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा क्रैब उसको पैर खींचेगा। तो इंडिया में क्या है कि लोग को खुशी से ज्यादा दूसरे के दुख में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्रिटिसिज्म में ज्यादा खुशी मिलती है शायद। सो ये मेंटालिटी है इंडिया में। लेकिन द गुड थिंग अबाउट अ एंटरप्रेन्योर इज ही शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। मैं आपको आज बताता हूँ कि मेरे को आज पता चला कि हमारा ना पुणे में वी वर लॉन्चिंग 2 स्टोर्स, ऑप्टिकल स्टोर्स पुणे में। वी वर गोइंग टू गो लाइव ऑन 1st of August, और 2 स्टोर का फैब्रिकेशन शुरू हो रहा था। और आज मुझे न्यूज मिला कि 13 से पुणे में लॉकडाउन हो रहा है। तो ठीक है, कुछ नहीं होता, लोग बुराई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का विल पावर स्ट्रांग है। हम लोग डिस्पाइट ऑल दैट वी विल ओपन एंड वी विल डू आवर बेस्ट डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स। हाँ, वी हैव टू adhere to all the government policies, लेकिन हम लोग का मोरल नहीं डाउन हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स हमेशा अफेक्ट करेंगे, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू बी पम्प्ड अप एंड पॉजिटिव अबाउट द थिंग्स and inspire your team to keep moving forward despite all difficulties. So ये हमारा कर्तव्य है, एक इंडिविजुअल का कर्तव्य। We cannot keep blaming the society कि यार वो मेरे को पुल डाउन कर रहा है या वो ये कर रहा है। वो तो करेंगे ना यार, वो करेंगे। आपके माँ बाप नहीं करेंगे तो आपके दोस्त करेंगे, दोस्त नहीं करेंगे तो आपके चाचा मामा करेंगे, चाचा मामा नहीं करेंगे तो आपके फ्रेंड्स करेंगे, फ्रेंड्स नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी, तो करेगी। So but you have to be resilient and we cannot keep blaming others. विशाल जी को गाना पसंद आता है तो मैं गाना एक बोलूंगा, लोगों का काम है कहना। वो कुछ तो गाना लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। बेकार की बातों में हाँ, कहीं बीच छोड़ ना जाए बेकार अपना। की बातों में बीडी कंटिन्यू करते हैं। यही बात एंटरप्रेन्योर्स यही गाना गाते हैं। और सौरभ दयाल जैसे और भी, जैसे अभिषेक जैसे जो भी ग्रुप में एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें यही स्पिरिट है कि मेरे मम्मी पापा चाचा दोस्त क्लासमेट सबको जो बोलना है बोलने दो। और नहीं सर, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आप लोग से बच भी नहीं सकते। जैसे हम अपना बता रहे हैं, हम अपना बल्ब का काम करते थे तो लोग बोलते थे कि बल्ब बेच रहा है। रोबोटिक्स का काम करने लगे तो वो तो आज लोग बोलते हैं कि अब बच्चा वाला खिलौना बिक रहा है। तो मतलब वो कैसे बचे, हमको समझ में नहीं आता है। बचना नहीं है नहीं तो वही उसी पे हम आ रहे थे अभिषेक जी, आपके समस्या का ही समाधान दे रहे हैं हम। तो ये जो गाना तो आप अपने लिए गाना है कि लोग गा लीजिए, बट अपने पेरेंट्स को कैसे आप बताइएगा, या आपके वेल विशर्स है जिनको चिंता है कि अभिषेक का नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, अभी LIC के जॉब के लिए, SBI की जॉब के लिए या सिविल सर्विस के एग्जाम क्यों नहीं दे रहा, वो तो आपको एडवाइस देते होंगे मम्मी पापा रिश्तेदार लोग। तो उनको ये बताइए कि हम ट्राई किए, हमको मिल नहीं रहा है, कोशिश किए बट हमको बहुत जगह पे नौकरी में प्रोसेस हम एक कर रहे हैं। हम नहीं, उनको ये सब का एक किताब खरीद के रख दिए हैं। हाँ, एक और कहानी निकलेगा ही नहीं। एक और कहानी सुनिए ना। तो उनको ये बताइए कि हाँ मम्मी हम बहुत ट्राई किए, सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम दिए, PT में क्लियर नहीं हो पाता है, बैंक का PO का दिए, वहां भी मैं रिटर्न पास ही नहीं पाया, बट एग्जाम दे रहे। साथ में आप सारा नोट्स निकाल के देखिए, मोटा बुक ला के रखा में देखिए, मम्मी पापा खुश रहेंगे, बोले कि हाँ कुछ तो कर रहा है।
और उनको उन्हीं में खुशी, आप उनको बदल नहीं सकते हैं। आप चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स को बदल ले तो बहुत हार्ड है, बदलने की कोशिश करना बेकार है। उनको जो खुशी मिलता है वो दिखा दीजिए कि हम ये मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं, इस बार हम पक्का सिविल सर्विसेज निकाल लेंगे, सिविल सर्विस नहीं तो बैंकिंग तो निकालेंगे, तो उनको खुशी मिलेगा। अब साथ में आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता है, बाकी को नहीं पता। और बाहर भी जाइएगा तो बताइए कि हाँ मैं तो जा रहा हूँ कहीं ट्यूशन लेने, कहीं नोट्स लाने। अब वो आप अपने कंपनी के लिए जा रहे हैं, स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं, या किसी और के लिए जा रहे हैं, ये सारा कुछ, कभी कभी सारा कुछ, जैसे धृतराष्ट्र के लिए जो सही कृष्ण ने जो किया था, कृष्ण ने जो किया था इसके लिए वहां पे धृतराष्ट्र के बेटे को मारने के लिए, तो यही कहा था ना अश्वत्थामा, कि मर तो गया लेकिन नरो न कुंजे, यानी कि आदमी नहीं हाथी मरा। तो वो जो स्ट्रैटेजी यूज किया था ना, वही कृष्ण वाला स्ट्रैटेजी आप यूज कीजिए पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको आप लॉजिकली समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। Okay, Nandan, you have some comment, please. Nandan. Yeah, hi everyone. It was a nice explanation by Atul sir. I want to ask a question for Saurabh sir. Like you told that the parents' mentality were like this. Don't you think it will be changed? It is going to change in the next generation, or you think in the next generation also it is going to be like we are also going to be parents and we are also going to restrict our children? It is, what do you think, like it's going to be happening in the next generation, or we have to wait for the two generations to be a mentality as a free mentality for the parents? Sorry. So I definitely think कि जो next generation होगा, या हम जब parent, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, they wish to do startup, obviously I will encourage my son or my daughter despite the fact he succeeds or fails. हम लोग entrepreneur का तो mentality बिल्कुल अलग होता है irrespective of generations, but I think लोग entrepreneurship का nurture इस generation में हो रहा है, पहले नहीं था। पहले ये स्टार्टअप और ये सब नहीं होता था। स्टार्टअप इज मोर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दुकान इज आल्सो एंटरप्रेन्योरशिप। दुकानें बहुत थी, मतलब इंडिया इज अ लैंड ऑफ हॉकर्स एंड शौर्य मत करो, सॉरी। दुकान इज इंडिया इज अ सॉरी इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो एक एक दुकान की हो। इंडिया बहुत हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और पूरा ठिया मार्केट है, तो लेकिन वो ऑर्गेनाइज में उसको बहुत सीरियसली अच्छे वे में नहीं लिया जाता है। आई थिंक मोदी जी और गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, तो आई थिंक विद द लेवल ऑफ इंक्रीज ऑफ एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सारे कॉलेजेस प्रमोट कर रहे हैं। आई गेट कॉल्स फ्रॉम सो मेनी कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, चाहे आईएम्स हो, आईआईटीज हो, लोकल कॉलेजेस हो, चाहे बिल्कुल लोएस्ट टू लोएस्ट ग्रेड कॉलेजेस हो, चाहे स्कूल्स हो। मैं वहां जाके भी लेक्चर दिया है मैंने, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, जैसा अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक सेशन अरेंज किया था जहाँ पे सारे गवर्नमेंट स्कूल जिनकी मंथली फीस इज ओनली 20 रुपीज पर मंथ, वहां भी जाके हम एंटरप्रेन्योर जाके वहां पे अपना हमने ज्ञान बांटा है और अपना लर्निंग शेयर किया है। सो फ्रॉम स्कूल लेवल टू कॉलेजेस, बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में बुलाया जाता है, बीटेक कॉलेजेस में बुलाया जाता है, कॉर्पोरेट्स में बुलाया जाता है, तो एजुकेशन 360 डिग्री फैल रहा है। आई एम श्योर इट विल अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन और आवर जनरेशन। Yeah, I also agree to this. Next generation will be more lenient in this startup culture and things like that, because I think it's also because we are gaining more knowledge in a 360 format. We have more access to internet and जैसे ये GD भी हो रहा है इस टाइप से, और इवेंट्स भी होते रहते हैं बहुत सारे, so lot of global knowledge is getting local now. So प्लस एक और चीज आपको देखना है कि वीसी का भी तो बिजनेस है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडस्ट्री, वीसी इंडस्ट्री, वो भी तो प्रॉस्पर कर रहा है। कितने सारे वीसीज इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, वी हैव आल्सो रिसीव्ड एफडीआई। तो इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उन्हें भी तो स्टार्टअप्स ढूंढने हैं, तो स्टार्टअप कल्चर तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो 360 डिग्री का इफेक्ट होगा, तो पेरेंट्स भी इंप्रूव करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड देयर वे ऑफ लुकिंग एट स्टार्टअप्स। Startup is not only दुकान खोलना, it is now organized दुकान खोलना। Okay, so opportunity cost पे थोड़ा और short term में आते हैं. Let's say we have to hire someone and
we took lot of time screening people. So instead of hiring the person in 1 day or 2 days, we went on like for a month and 2 months, 3 months to hire the person, or even any kind of decision making in entrepreneurship, startups. ये करे कि ना करे, ये कशमकश, क्या करे क्या ना करे. तो ये हमेशा ही आई थिंक स्टार्टअप्स में होता है इनिशियल लेवल पे, खासकर क्योंकि प्रोसेसेस आर नॉट डिफाइंड, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर, every decision can cost a lot of things in terms of money and other things also, stress and hampering on the business. तो यहाँ पे आई मीन हम लोग जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं मंथली, उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट रियली देयर as a number or as whatever, as a something when we have alternatives that ये करे कि नहीं करे, वो करे कि नहीं करे. So इसमें Atul sir, what do you think? This decision making process, should it be fast for an entrepreneur, or should it be slow and calculated? And like, what's your take? Like, jaldi jaldi लेना चाहिए? तो in my view क्या है कि it should be informed and thought out. Now few people can make the decision in hours, few can को सालों लग जाएंगे, तभी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे. तो उसके पीछे क्या है ना कि पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड सिचुएशन काफी मैटर करता है. कि आप और मैं थोड़ा सा स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता हूँ, बट एग्जांपल देना चाहता हूँ. अगर मैं किसी अग्रवाल फैमिली से हूँ या कॉल्ड बनिया फैमिली से हूँ, तो मेरा डिसीजन मेकिंग थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी बिजनेस के फील्ड में, या जीव फैमिली में, ग्लोबल कंट्रीज में किसी यहूदी फैमिली से हो, तो मेरा जो कम्युनिटी है ना, दे नो एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप देखा है, एंड दे नो कि कितना उसके हाई रिवार्ड्स कितने हाई होते हैं. तो उस कम्युनिटी में आपको इनकरेज भी किया जाएगा, सपोर्ट भी किया जाएगा, और आपको हर तरीके से सपोर्ट, इवन सरदार फैमिली में, अगर सिख फैमिली में, तो आपको बहुत इनकरेज किया जाएगा. लेकिन अगर आप जो अभिषेक जी के पॉइंट पे कर रहे हैं, कि आप इसे बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हो, या यूपी के कुछ फैमिली में, या बहुत सारे जो इंडिया के जो स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर है, तो वहां पे आपको सर खपाना पड़ेगा टू कन्विंस कि करें ना करें. बहुत सारे लोग डिस्करेज करेंगे, बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे, आपको काउंसलिंग सेशन बुलाया जाएगा, जो अच्छे जो रिस्पेक्टेड लोग हैं फैमिली, उनसे मिलवाया जाएगा कि समझाइए इस मेरे बेटे को कि भटक गया है, क्या क्या सब स्टार्टअप करना चाह रहा है, जबकि एग्जाम बोल रहे हैं कि एग्जाम दो, आईएएस का एग्जाम, इसका एग्जाम दो. तो वो अलग अलग सोसाइटी स्पेसिफिक थोड़ा होता है, कि कुछ सोसाइटी बहुत एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री है. और कमिंग बैक टू इंडिया का कल्चर हजारों साल पहले से एंटरप्रेन्योरशिप का ही था. ये लास्ट 70 साल में जब से हम लोग, या 150-200 साल में जब से हम लोग गुलाम बन गए, तब से ही हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का, और उसके पीछे रीजन है कि जब आपको पेट भरने का चिंता है कि पेट कैसे भरेंगे, तो बहुत ज्यादा गरीबी देखा होता है पेरेंट्स ने, कि बहुत सारा एडवर्सिटी थी, स्पेशली बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, आज भी है, यूपी में भी है. तो जिस कम्युनिटी, या आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि आंध्र प्रदेश में क्या है ना, कि बिकॉज ऑफ बीइंग अ ड्राई, डेक्कन प्लेटू काफी ड्राई होने के चलते वहां पे खेती करना आसान नहीं था. बिहार वगैरह में तो क्या कुछ नहीं, तो चलो खेत है, खेती कर लगे. आंध्र प्रदेश में इट वाज वेरी हार्ड टू इवन अर्न अ लिविंग एग्रीकल्चर के थ्रू, क्योंकि वहां पे पानी नहीं होता था, खेत नहीं होते थे, ड्राई लैंड है. तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने क्या किया, और उसका एडवर्सिटी का एक फायदा क्या हुआ, कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि एजुकेशन इज आवर ओनली एस्केप. तो बहुत सारे लोगों ने, आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपने बच्चों को एजुकेशन पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मेडिकल, इंजीनियरिंग या कुछ भी. या बहुत सारे लोगों ने, जब से कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन आया 2000 के आसपास में, Y2K वगैरह आया, तो पूरे दुनिया में फैल गए. हैदराबाद के लोग या आंध्र प्रदेश के लोग H1B वीजा के लाइन में सबसे ज्यादा कोई कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से है या तेलंगाना से है. क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी के लिए दैट वाज अ एस्केप रूट अपॉर्चुनिटीज के लिए, और लोकल वहां पे थी नहीं. बट सेम आप देखोगे किसी हाईली रिच फैमिली में या कम्युनिटी में, तो उतना ज्यादा इंसेंटिव नहीं होता. कुछ भी नहीं करोगे तो दादाजी के पास इतना जमीन है या इतना प्रॉपर्टी है, उनके अपार्टमेंट पे रेंट देके खर्चा पानी चल जाता है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पटना का बहुत बड़ा एक एलिट फैमिली सेगमेंट है, जिनके बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खानदानी इतना संपत्ति है कि उनको डीलरशिप चाहिए कार का, मिल जाएगा. उनको कुछ नया फ्रेंचाइजी लेना है, मिल जाएगा. तो उन कम्युनिटीज में
ये स्टार्टअप वगैरह मतलब इसको इनकरेज नहीं किया जाता। लेकिन जहां जहां पे आंध्र प्रदेश का एग्जांपल दे रहा हूँ, या इवन महाराष्ट्र काफी एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली प्लेस है, पुणे काफी, तो उन प्लेसेस पे एंटरप्रेन्योरशिप को सोसाइटी प्रमोट करती है। किसी भी आप सरदार फैमिली, आपके जान पहचान में कोई भी हो, मैं बहुत सारे मेरे दोस्त अच्छे, उनसे आप पूछ लो, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करोगे ना तो उनका एकदम चेहरा चहक जाएगा और बोलेंगे अतुल हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो कम्युनिटी की बात होता है, स्पेसिफिक होता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभिषेक आप और हम उस सौरभ दयाल भी पटना से होते हुए करें, क्योंकि दयाल फैमिली थोड़ी वो भी एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी होगी, या उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई बिकॉज ऑफ एजुकेशन, या जहाँ पे दिल्ली में कर रहे थे ना स्टार्टिंग, बाद में हर जगह, तो जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वहाँ का बहुत कुछ इन्फ्लुएंस रहता है आपके इस स्टार्टअप करने या ना करने में, डिसीजन में। यस, सो लेट्स से अभिषेक जानता, अभिषेक देयर, ये डिसीजन मेकिंग पे तुम्हारा क्या राय है? जल्दी जल्दी लेना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए? मेरा तो डिसीजन मेकिंग अतुल सर या अमिताभ वो जानते हैं बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हम वेट नहीं करते, एक होता है नहीं जो होगा सो देख लेंगे बस। मेरे ख्याल से फास्ट लेना चाहिए, क्योंकि और इसीलिए शायद मेरा जेई में फर्स्ट टाइम नहीं हो पाया था। तो इनफैक्ट हर लोग मेरे को प्रेशर डाल रहा था कि 1 साल और तैयारी कर लो और उसके बाद लेकिन हम मतलब इतना प्रेशर के बाद भी हम नहीं रुक गए, क्योंकि मेरे लिए 1 साल बहुत ज्यादा वैल्यू करता है 365 दिन। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत माइंड लगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, और क्या। इसी को तो स्टार्टअप बोलते हैं। फास्ट, स्लो, व्हाट्स योर टेक ऑन डिसीजन मेकिंग टाइम? मुझसे पूछा क्या विशाल? यस, डिसीजन मेकिंग फास्ट करना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, या लाइक आई मीन व्हाट शुड बी द, कितना स्लो करना चाहिए, कितना फास्ट करना चाहिए? और लेट्स से अकॉर्डिंग, यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल, आर यू अ फास्ट डिसीजन मेकर? यस, आई एम अ वेरी फास्ट डिसीजन मेकर, बिकॉज मेरे पास ना जीने का समय बहुत कम है। मेरे स्टार्टअप का ना, मैं फंडेड स्टार्टअप हूँ, तो मेरे पास पैसा है 100 रुपए, तो मैं 100 रुपए खत्म हो जाएगा 1 साल में। तो मेरे पास चॉइस ये, या तो धीरे चलो और उसको 2 साल में खत्म करो, या तो तेज चलो और 6 महीने में खत्म करो, इन्वेस्टर को खुश करो और नेक्स्ट राउंड रेज करो। तो मैं बिलीव करता हूँ ना 6 महीने में ना 1 साल में, अगर 1 साल का पैसा मिला है तो मैं 10 महीने में खत्म कर दूंगा और टारगेट ओवर अचीव कर लूंगा अपना, या जो भी मुझसे एक्सपेक्टेड है, और फिर मैं नेक्स्ट राउंड रेस करूंगा। तो मेरे पास तो टाइम है नहीं कि वेट करूं मैं। आई कैनॉट बी अ बाटा कि मैं 50 साल में इंडिया का नंबर 1 शू ब्रांड बनूंगा। आई डोंट हैव दैट टाइम, बिकॉज आई एम नॉट ए इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दूसरे से पैसा लेके बिजनेस कर रहा हूँ। पैसा लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। ये तो तुमने बोला फंडिंग के बाद का कहानी, बट नहीं, और एक चीज इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि बहुत आदमी के पास खोने के लिए बहुत चीज होता है, लेकिन जो आदमी जीरो से बोले, जीरो इन द सेंस में मतलब जीरो अमाउंट नहीं, जो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत भी सक्सेस पा लेते हैं। तो मतलब खोने के लिए उतना कुछ नहीं होता है। तो जिनके पास खोने के लिए होता है उनका डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो होता है। लेकिन मेरा क्या है कि हम सोचते हैं कि जो है सो मेरा बैग से नहीं आया, हम खुद किए हैं, क्या जाएगा मेरा, जाता भी है तो ठीक है, कुछ सीखेंगे और क्या। करेक्ट। ऐसे सोचते हैं 4 साल पहले तो जीरो से ही स्टार्ट किए थे, फिर जीरो पे भी चले गए, क्या हो गया, एटलीस्ट आई हैव द नॉलेज इन माय हेड, राइट? सौरभ से एक और क्वेश्चन है। सौरभ, ये तो तुमने बोल दिया कि जब फंडिंग हो गई तब ये तुम्हारी कहीं ना कहीं एक कंपल्शन है, या एक कहीं और कोई और चारा नहीं है, बट आई कैन प्रीटी मच बेट दैट यू आर अ फास्ट डिसीजन मेकर बिफोर यू रेज द फंडिंग आल्सो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। You are muted, sir. Unmute. We were very lucky कि मैंने आइडिएशन स्टेज में ही फंड रेज कर लिया था। हाँ, नहीं फिर भी मतलब you are a fast decision maker as a person, right? मेरे को ना मेरा एक्चुअली मेंटालिटी क्या है ना कि मैं खाली बैठता हूँ अगर खुद, तो मुझे इरिटेशन होने लग जाता है अपने आप से। या फिर अगर मैं किसी अपने एम्प्लॉय को देखूंगा कि वो खाली बैठा हुआ है, तो मैं
I'll take a decision उससे for him. irritation हो गया. Either I'll give him work or I'll take out work or टाटा बाय बाय हो जाता है. मेरे पास इतना टाइम, मैं बहुत, मेरे को बोला ना, मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होने लग जाता है अपने आप से, अपने काम से. So I like to be productive and I am a very ROI point of person. मैं अगर कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उसका रिटर्न चाहिए. Even if I'm investing my time in this GD, I know what I will get after certain time. So इसीलिए I'm there. Correct. So I am also a fast decision maker to support the fast decision making body. यस, आपको तो हम जानते हैं, बहुत ही फास्ट है आप. तब एक दिन में आपने अपना रेट कार्ड दे दिया, अब इतने फास्ट है आप. हाँ, वो भी है ना, वो विदिन अ डे डिसाइड किया कि क्या कर रहे हैं ना. पहला दिन ये करो, दूसरा दिन ये करो. तो 2 महीने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो गया विशाल का. आप लोगों ने एक गेम खेला है कि नहीं? वो आई रिमेम्बर जब आए हुए हॉस्टल में, तब सारे लोग खेला करते थे वो गेम, नीड फॉर स्पीड. रेसिंग का गेम है. तो एंटरप्रेन्योरशिप वही नीड फॉर स्पीड वाला गेम है. अगर आपको सक्सीड करना है या सर्वाइव करना है तो नीड फॉर स्पीड बहुत जरूरी है. अगर आप सोचने में आपने टाइम खर्च किया, तब तक जो आप आइडिया सोच रहे थे वो आइडिया आपको अगले दिन दिख जाएगा. अरे मैं तो ये शुरू करने वाला था, इसका तो वेबसाइट लॉन्च हो गया, या इसका तो एक दूसरा कॉफी हाउस खुल गया. अब जब तक तो संदीप जी का और या विशाल जी का ये पॉइंट बहुत सही है, इवन अभिषेक जी भी, कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. जो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, बहुत सोच विचार के डिसीजन लेते हैं ना, जब तक वो डिसीजन लेंगे तब तक वो डिसीजन इररिलेवेंट हो चुका होगा. इसलिए मैं हाईली इंकरेज करता हूँ कि जो करना है ना, राइट हियर राइट नाउ. करेक्ट. तो ये अब इस पे एक और very genuine problem or very genuine situation, let me narrate. Lot of people think they will start a startup, start a business, do this, do that, but somehow they are not able to start. They are not able to take that decision very fast. So my whole agenda for this, bringing this opportunity cost thing, was to actually explain those kind of people that actually every day you are losing a day. So ये जिन्होंने समझ लिया कि every day you are losing a day, जो है समा कल हो ना हो, इस टाइप से. अभी अगर कोविड का एग्जांपल लेते हैं, राइट, 3-4 महीने पहले क्या जीवन था लोगों का. कितने लोगों ने सोचा होगा कि हाँ विदेश जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस साल काम कर ले, अगले साल घूम लेंगे. ऐसा सोचा होगा बहुत लोगों ने, राइट. बट then situation change, right? तो कहीं ना कहीं it's like जैसा अभी अतुल सर भी बोले या सौरभ भी said और अभिषेक also said, तो अभी हम लोग तो कुछ किया भी हुआ है, लेकिन let's say for student like Aman is there. So Aman, what do you think कि ये होता है तुम्हारे बैचमेट्स वगैरह के साथ बहुत that सोचते हो करेंगे बट फिर बस उस चिल्ली जैसा रह जाता है कहीं ना कहीं. अमन नरीजर और उज्जवल, if you can answer, what do you think? Yes sir, yes. ये होता है बहुत. Actually सर, मैं खुद ही डीले कर रहा हूँ. मैं सोचता हूँ डेली आज मॉक दूंगा कैट का, मैं डेली छोड़ देता हूँ. तो उसका रीजन भी है बिकॉज मैं काफी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ. मैंने ऑलरेडी बताया कम्युनिटी बिल्डिंग पे, तो मैंने देखा मतलब कि आई थिंक सर हम लोग डीले करना. और एक और चीज सर कि आई थिंक प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक हम कुछ नहीं कर रहे. सबके साथ होती है कि हमें पता ही नहीं होता है क्या करना होता है, और कुछ करना भी होता है तो हमें कुछ ड्राइव नहीं मिल रही होती या कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा. लाइक मैं और अमन ने कम्युनिटी स्टार्ट किया, तो अभी मॉनेटरी टर्म का भी सब फाइनल कर लिया थोड़ा बहुत आपकी हेल्प से. तो मेरा क्या था, मैंने ऐसे ही रैंडम एक दिन पता नहीं क्या डिस्कशन हो रहा था यहाँ जीडी पे, तो मैंने रैंडम बोला चलो हम लोग खुद का स्टार्ट करते हैं. तो फिर सब स्टार्ट हो गया, टीम भी बिल्ड हो गई, 10-12 लोग ज्वाइन भी हो गया. तो मेरे हिसाब से सर ड्राइविंग जरूरी होता है. लाइक किसी का मोटिवेशन, कोई आपके सामने कोई हो. मेरे पास कोई नहीं था कि मुझे कोई स्टार्टअप के लिए मोटिवेट कर पाए, बट यहाँ पे आया तो मैं मोटिवेट हो गया स्टार्टअप के लिए. और मुझे अब तो मेरा फाइनल हो गया लाइफ में, मैं बिजनेस ही करूंगा या स्टार्टअप ही करूंगा.
तो So ये not इम्पोर्टेंट है। just not just startup, anything. हाँ, लाइक आईएएस भी किसी को बनना है तो लाइक किसी के आईएएस बनना पीसीएस के पीछे रहना चाहिए। लाइक कुछ भी करना है, प्रोफेसर भी बनना है, किसी कॉलेज लाइक आईएम अहमदाबाद का किसी को प्रोफेसर भी बनना है तो दे हैव टू सराउंड विद देम। लाइक किसी ने कहा भी है कि फालतू लोगों के साथ चिल मत मारो, जिससे आपसे लाइक कुछ बनना, मतलब कि प्रोडक्टिव आदमी के साथ चिल मारो। लाइक मैं भी यहाँ पे चिल ही मार रहा हूँ आप लोगों के साथ, नहीं तो मैं भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड या किसी फ्रेंड के साथ फोन पे लगा रहता। वो चिल मारना होता है, ये तो नॉलेज गेन करना है। या एक्चुअली आई गेट चिल, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, कुछ के लिए बोरिंग बात है। या सही बात नहीं, तो ये आई थिंक lot of people have this problem of like procrastinating. Yes, Nandan, you had some comment, you wanted to say something, please. Nandan, are you there? Yeah, Yes, I'm Nandan, there. please. You have asked that taking the decisions. 2 years back is my you asked that regarding my friends, like what are the surroundings are going on. 2 years before is my graduation. 2018 is my graduation. 2 years was completed, and 10 members was my graduation friends, and they are having a mindset that four of them went to MS, five of them they are doing their software. Right now they are not having the mindset that they should do the entrepreneurship programming. They are pretty satisfied. They are thinking that they are satisfied with their jobs. What do you think? If they are satisfied with their jobs, uh, they they are going to come to an entrepreneurship mindset, or they are going to continue as an our uncles, or as an software, as an retired as an software? Yeah, this is my question. In one sentence again, please. Last sentence. If they are satisfied in their job as a If they software are job, if satisfied they are in the job, can they become yeah, entrepreneur? yeah, would they Mhm. have the mindset to become an entrepreneur? Okay, I think So I have some comment. Please. Yeah, go ahead, Vishal. नहीं, please. So हाँ, so उस पे क्या है ना कि I very often people ask this question to me कि मैं फ्री का स्टार्टअप एडवाइजर हूँ बहुत लोगों के लिए, तो आस्क कि स्टार्ट करें कि नहीं करें, मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है, मैं बहुत डरता हूँ रिस्क लेने में, मैं बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी में काम कर रहा हूँ, सैलरी आ रही है, फैमिली भी खुश है, सब कुछ खुश हो, बट घर भी खरीद लिया, कार भी ले लिया, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क मैं लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि देख रहा हूँ कि सारे मेरे जो स्मार्ट क्लासमेट है वो लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, ये होता क्या है। तो उस पर मैं उनको यही कहना होता है कि देखो ज्यादा डिले डिसीजन, मतलब कि डिले मत करो ज्यादा। जो मैंने अभी कोटेशन भी वैन गॉग का पोस्ट किया अभी ग्रुप में कि आप कर दो, शुरू कर दो, एकला चलो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाना गाया था कि कोई नहीं है आप अकेले शुरू कर दो, फिर देखो कि लोग आते जाएंगे, काफिला जुटते जाएगा और कारवां बनता जाएगा, बट शुरू करना इज द मेन थिंग। तो आप हाँ, कमिंग टू द जॉब वालों के, तो जॉब वालों के साथ मैं ये करता हूँ कि आपका जो रेगुलर पेचेक वाला जो एडिक्शन है, जो को मैं बार बार कोट करता हूँ कि बहुत ही नशा है, शराब से भी बड़ा, जुआ से भी बड़ा और ड्रग से भी बड़ा नशा है सैलरी। जब आता है ना किसी जॉब वाले को 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद, तो बहुत हाई फील होता है, राइट? सब ज्यादातर लोगों को हाई फील होता है। जिस दिन बैंक में अकाउंट में पैसा आया या चेक मिला तो बहुत हाई फील होता है। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि चलो कॉफी पिला दे मुझे। मेरा एक दोस्त है क्लोज, विरल ठक्कर, जब भी जाता था क्या तो चलो स्टारबक्स चलते हैं, आज सैलरी आया है, और कोई मेरे मम्मी पापा सबको अंकल आंटी साथ में लेके चलते हैं। तो सैलरी आने के बाद हाई तो फील होता है, पर उसके बाद लो भी फील होगा अगले दिन, जब पता चलेगा फिर सेम ओल्ड बैक जो ऑफिस की बॉस की बकवास सुननी पड़ेगी, सेम ओल्ड कभी कभी गंदे क्लाइंट है उनका बात मानना पड़ेगा, इवन तो क्लाइंट पसंद नहीं, बट क्लाइंट है, पैसा मिल रहा है तो जो सुनना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ यही है कि आप जिस दिन आप इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए तैयार हो, और एंटरप्रेन्योरशिप भी एक नशा है, एक बार आपको नशा मिल गया तो फिर आप वापस बहुत मुश्किल से वापस जाओगे। तो आपने एक बार स्टार्ट कर दो, और जब आप जॉब में हो या पढ़ाई में हो उसी समय आप स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में बोलता हूँ सबको कि पार्ट टाइम करो कुछ घंटे, कि आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, या और भी बहुत सारे गेम्स खेलते हो, उन सब चीजों का कुछ टाइम आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर के लिए लगाओ साथ में। कंपनी से सैलरी उठाओ
और उसी पैसे का कुछ % अपने एंटरप्रेन्योरशिप में साथ में चलाओ। आजकल ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। हर आदमी जो आज इन्फोसिस टीसीएस में काम कर रहा है, आप पता करोगे, पूछोगे उनसे तो बताएंगे साथ में किसी स्टार्टअप में भी इन्वॉल्व है, कहीं कहीं में डायरेक्टली, कहीं कहीं में पैसा लगाते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे, चलो कोई और कर रहा है तो ज्यादा। तो दैट इज द वे एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करता है। तो आप जॉब करते समय ही या पढ़ाई करते समय ही आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे पार्ट टाइम स्टार्ट हो जाओ। जिस दिन आपका एंटरप्रेन्योरशिप उस लेवल पे पहुंच गया कि आपकी टीम बन गई, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, या आपको लगता है कि नहीं इनकम भी मैं आने लगी कि 70% 60% जो मेरी सैलरी थी उतनी तो मैं साइड बिजनेस से कमा ले रहा हूँ, तो मेरी टोटल इनकम 170% थी, तो आप उस दिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मैं अपने उस 100% सैलरी जॉब वाली चीज सिक्योरिटी को छोड़ना चाहता हूँ और मैं फुल टाइम अपने, तभी आपका वो ग्रो करेगा। अदरवाइज आप दो नाव पे एक साथ नहीं चल सकते हो। एक नाव में चलते चलते बाकी आप सीनरी देखते रहो, लेकिन और साथ में आप कुछ मछली मारो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको करना है सीरियस, तो सीरियस वही है जिस दिन आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के फुल फ्लेजेड एंटरप्रेन्योरशिप में आपने जंप मार दिया। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने क्लास ड्रॉप आउट कर दिया। बिल गेट्स ने यही किया था, स्टीव जॉब्स ने यही किया था, मार्क जकरबर्ग, सबने यही किया कि आप सब कुछ जिस दिन छोड़ छाड़ के आपने तैयार हो गए जंप करने के लिए अपनी जॉब को या अपनी पढ़ाई को, तब आप मैदान में आप एक्चुअली आप नदी में कूद गए हो। उसकी नदी में कूद गए तो फिर तो कोई उपाय नहीं है, या तो डूबोगे या तैरोगे, या मैं भी हाथ पर मार के तैरना सीख जाओगे। कोई और बचा भी ले, कोई कभी कभी बचाने की जरूरत पड़ती है तो कोई बचाने वाला आ जाएगा, आपको एंजल इन्वेस्टर आ जाएगा कि चलो ये लड़का बहुत टैलेंटेड था तो चलो इसको कुछ मैं $1 मिलियन दे देता हूँ। तो मेरा कहना यही है, शॉर्ट समरी यही है कि आप शुरू करो, वेट मत करो। बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में डिले करोगे ना तो लाइफ बीत जाएगी। ये बेस्ट एग्जांपल एक अभिषेक जनता भी है। तो I remember, एक दिन he was very confused कि he should sit for the placement or not. He came to our office कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना। फिर हमने इसको बोला कि तुम्हारा जो अभी बिजनेस चल ही रहा है, अभिषेक थोड़ा सा यू ओनली कर। हेलो। हाँ बताओ। नहीं, जैसे मेरा क्या था कि एक तो घर से प्रेशर आ रहा था कि प्लेसमेंट में बैठना है, पर मेरा एक एटीट्यूड रहा था कि हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं और जिस बैच में थे उसी बैच के लड़का को हायर करना है जॉब में। लेकिन घर वाले लोग क्या बोलते थे, क्या रे ये बहुत ई फेंक रहा है, ये सब ये कैसे पॉसिबल है। बाद में हम गए थे विशाल सर के पास कि मतलब प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्म टाइप का भरा रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं है कि प्लेसमेंट में बैठने का, क्योंकि हम अपना एक क्लास में भी एक अपना एटीट्यूड में ही रहते थे कि हम एक एंटरप्रेनर हैं, ठीक है, तो एक अपना एटीट्यूड रहता है। हम इनसे बोले थे कि हम जॉब में बैठे या नहीं बैठे, तो ये बोले कि विशाल से नहीं बतलाए थे कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन तुम अपना ये सोच लो। फिर भी हम बहुत चीज डिस्कस के बाद हम डिसाइड किए कि हमको प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, और उसके अगला दिन हम एप्लीकेशन लिख के अपने एचओडी को दे दिए कि हम फाइनल ईयर में एक भी प्लेसमेंट में बैठना नहीं चाहते हैं। तो एक भले एंटरप्रेन्योर में सक्सेस हो फेलियर हो वो अलग चीज है, लेकिन कल या परसों जो उस सौरभ सर बोले थे नहीं कि जो अंदर से वो फीलिंग आता है ना, भले आप जॉब में लाखों का महीना कमाते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप वाला एटीट्यूड है ना जॉब में ये कभी नहीं मिलेगा। आप 10,000 भी मंथ में कमा रहे हो एज ए स्टार्टअप, तो वो पेपर में फोटो आएगा तो आप ही का आएगा, क्योंकि आप एज ए फाउंडर है, हर जगह आप ही का नाम होगा। आप इस जॉब करते हो, एक कितना जॉब वाला को होटल हयात और होटल विवांता इनवाइट करता है, कोई नहीं करने वाला है। लेकिन एक छोटा सा ही आप स्टार्टअप है तो इतना जगह से इनविटेशन आता है, एक मतलब अपना एटीट्यूड रहता है। मेरे लिए तो क्या बोले, हम फेलियर भी मतलब आगे चल के हो जाएंगे ना, तो इतना चीज सीखे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर चाहे उसके बाद जॉब लेना वो कहीं ले सकता है, कहीं ले सकता है। सही बात है। अभी सौरव ने जैसे बोला नॉलेज बहुत हो जाएगा, और आई थिंक ये भी एक आई गिव वन एडवाइस कि ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी फाउंडर एंड यू हैव टू ओनली स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन. You can also join someone who has started. So it's still kind of a job, but still at a very decision making step. Yes. एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक और प्लस पॉइंट कि आप जॉब भी खोज रहे होगे ना,
तो पुराने जमाने में आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री, टॉपर हो कि नहीं, वो वैल्यू आता था। आज के जमाने में जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है, तो आपका एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस है, फील्ड भी है, या आप एंटरप्रेन्योर कंपनी में काम भी कर रहे हो, स्टार्टअप टाइप का एक्सपीरियंस आपके बायोडेटा में ना आज उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है जॉब मार्केट में भी। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज आपको इसलिए ले लेंगी क्योंकि इसने किसी एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी में काम किया है या स्टार्ट किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके सीवी का एक अच्छा बुलेट पॉइंट भी आज सौरभ का एग्जांपल है या अभिषेक का एग्जांपल है। अब सौरभ को दुनिया की बड़ी बड़ी चश्मा कंपनी खोज रही होंगी कि भैया हमारे कंपनी को अपनी कंपनी बेच दो या हमसे पैसा ले लो। अभिषेक का भी अपने रोबोटिक्स के फील्ड में पूरी दुनिया भर में जहां चाहेगा, तो रोबोटिक्स बहुत सारी कंपनी है, वो कुछ करना चाहते हैं तो अभिषेक को बोलेंगे अभिषेक हमारे साथ पार्टनरशिप करो। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही रिवार्डिंग और फुलफिलिंग तो होता है, रिस्क भी होता है और बहुत लो मोमेंट्स भी आते हैं अंत में कि आज कुछ कमाई नहीं हुआ, आज एक चश्मा बिका ही नहीं, आज नया कुछ खुला नहीं, वो सब भी आया। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि बहुत हाई जहां भी होंगे तो दुनिया वेव्स है, तो साथ साथ बहुत लोज भी होगा। कोई ग्राहक नहीं आया आज तो उनका चश्मा दुकान में थोड़ा बहुत दुख होता होगा कि अरे आज एक भी कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है, क्या बात है, मार्केट में कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, क्या है, कोई आज कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तो कभी कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं पे अचानक कोरोना फैल गया, व्हाटएवर रीजंस, तो आपको थोड़ा लोज भी आएंगे, बट आपको हाईज एंड लोज दोनों को नेविगेट करने का स्टैमिना होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए। तो नहीं, यहाँ में कि बस ऐड करना चाहेंगे सॉरी कि रिस्क का जो वो बात बोलता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। मेरे ख्याल से रिस्क हर चीज में होता है, यहाँ तक कि जो इंसान अपने बेटा को पैदा करता है उसमें भी रिस्क होता है कि बाद में हमको औलाद मार के बाहर ना निकाल दे। रोड पर चलते हैं लोग, उसमें भी रिस्क होता है। रिस्क तो इसमें भी था जो आज विकास दुबे मारा गया कि उसका बाप का शर्म से सर झुक गया कि उसका दाह संस्कार में भी नहीं गया। रिस्क हर चीज में है, पर इसमें क्या है कि रिस्क के साथ मजा है, सेटिस्फेक्शन है। जॉब में रिस्क नहीं है, एक बार कंपनी बोल दिया कि हाँ भाई जाओ मिस जाओ। कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप में इतना तो है कि लॉस लगेगा तो एक बार इतना नहीं लग जाएगा कि हम रोड पे आ जाएंगे। रिस्क हर चीज में है मेरे ख्याल। अल्टीमेटली यही सलाह रहेगा कि सबको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, फिर जो होगा देख लेना है, जॉब भी कर लेना बाकी चल के। बहुत सारे लोग आई गेस नहीं भी कर पाए। मैं बस अतुल सर ने जो एक पॉइंट बोला कि चश्मा का सेल 0 भी होगा, तो मेरे पास जस्ट अभी मेरे सेल्स पर्सन का डेली रात को मैसेज आता है, सारे जितने स्टोर है सबके मैसेज आते हैं, तो एक का सेल ना 0 हुआ, तो मैंने ना इमीडिएटली उस पर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, सचिन भी 0 पे आउट होता है, मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। तो 0 तो आएगा यार, कल 100 मारना पड़ेगा। हाँ, जबरदस्त कोट उन्होंने, ये सौरभ जी ने कोट दिया ना कि जब 0 बना के आता हो उस समय आप कैसे, हाउ यू बिहेव, वो बहुत आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। सेंचुरी बना के वर्ल्ड कप जीत के तो पूरी दुनिया आपको गले उठाए हुए है, जिस दिन आप 0 आए हो, या हम लोगों ने उनका वो स्टोरी वैसे कहते हैं ना, श्रीलंकन जो थे कितने साल तक नहीं कर पाए, फेल हुए, लेकिन मारवन अट्टापट्टू तो अट्टापट्टू जैसे अनेकों एग्जांपल, आप तो गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे तो आपको फेलियर बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि ट्राई करो, एक फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, बट गिव अप नहीं करना, दैट्स द मेन थिंग, कभी भी गिव अप नहीं करना। आप सोचिए KFC का जो फाउंडर है, सॉरी विशाल लेट हो गया है, लास्ट पॉइंट बस, KFC वाज फाउंडेड इन व्हेन ही वाज 63 ईयर ओल्ड। कितना उसने ट्राई किया होगा इनिशियल डेज में, टिल 63 इयर्स वो फ्राइड चिकन ही बना रहा था, और कहाँ बनाता होगा, घर में बेचता होगा, छोटा सा स्टॉल लगाता होगा। इवेंचुअली उसने KFC बनाया, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ द वर्ल्ड, तो और बिगेस्ट फूड चेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कीप ट्राइंग एंड बी अ फास्ट डिसीजन मेकर। ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि सोचते सोचते इंसान का काल आ जाता है। अभी कोविड-19 है, पता भी नहीं है क्या होगा कल। ओके, सो वी आर ओवर टाइम, विल एंड द डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं। आई थिंक वी हैड इन आवर सीक्वेंस एड इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, सो टुमारोज टॉपिक विल dig into advertisement industry. Okay, good night, bye bye.